Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. બાળમિત્રો, અત્યાર સુધી તમે રાઇમ્સ, સ્ટોરી અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા અંગ્રેજી વિષયના અલગ અલગ મુદ્દામાંથી કંઈક ને કંઈક નવું શીખ્યા જ હશો અને મજા પણ આવી હશે. હવે તમારે અગાઉ શીખી ગયેલા મુદ્દા આધારે પુનરાવર્તન કરવાનું છે. એટલે કે હવે પછીની રિવિઝન એક્ટિવિટીઝ માટે અગાઉ શીખી ગયેલા મુદ્દા આધારે આપણે રોજ કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લઈશું. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ રિવિઝનની એક્ટિવિટી 1. બાળમિત્રો, તમને યુનિટ 1ની એક્ટિવિટી 1 તો યાદ જ હશે. એમાં તમે એક સરસ મજાની રાઇમ સાંભળી હતી. રાઇમનું નામ શું હતું? There were 5 in the bed. એના આધારે તમે થોડા રાઇમિંગ શબ્દો શોધી કાઢ્યા હતા. તો આજે પણ તમારે ફરીથી હું એ જ રાઇમ યાદ કરાવી દઉં. એના માટે ચાલો જોઈએ આ એનિમેશન. There were 5 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. જોઈને યાદ આવી ગઈ ને તમને રાઇમ? અને તમને એ પણ યાદ આવી ગયું હશે કે રાઇમિંગ શબ્દો કઈ રીતે ઓળખવા. તો હવે એવી જ એક્ટિવિટી 1 રિવિઝન માટે પેજ નંબર 47 ઉપર આપણે જોઈએ. એના માટે ફરીથી તમને હું એ રાઇમ બતાવું છું, જે તમે ધ્યાનથી જોજો અને સાથે સાથે થોડા શબ્દો ઉપર વધારે ધ્યાન આપજો કે જેથી તમે રાઇમિંગ શબ્દો શોધી શકશો. Lived in a funny town where everything was upside down. The birds walked and the humans flew where the trees were totally blue. Trees talked and laughed a lot. They stole each other's fruits and fur. The bear was gentle, kind and sweet. He never ever ate raw meat. Fishes went to school in a pool where a frog as principal did rule. The sky was green and the water flew and told me in life always be true. મજા આવીને બાળમિત્રો? તો ચાલો હવે હું ફરીથી તમારા માટે આ પોએમને રિસાઇટ કરું છું. તમે પણ રાઇમિંગ શબ્દો શોધવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચાલો હવે મારી સાથે પોયમ ફરીથી સાંભળો. પોએમનો ટાઇટલ છે અ ફની ટાઉન. I lived in a funny town where everything was upside down. The birds walked and the humans flew where the trees were totally blue. Trees talked and laughed a lot. They stole each other's fruits and fought. The bear was gentle, kind and sweet. He never ever ate raw meat. Fishes went to school in a pool where a frog as principal did rule. The sky was green and the water flew and told me in life always be true.
બાળમિત્રો, તમે જોયું ને પોયમનો ટાઇટલ ધી ફની ટાઉન કેમ લખ્યું હશે? કારણ કે ત્યાં બધું સામાન્ય કરતાં કંઈક અલગ છે, કંઈક જુદું છે. તમે જોયું કે ત્યાં ટ્રીઝ ટોકિંગ કરી રહ્યા છે, એ ફાઇટિંગ કરી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે વિચારો કે બે ટ્રીઝ હોય, એપલ ટ્રી, મેંગો ટ્રી, એ એકબીજાના ફ્રૂટ્સ સ્ટીલ કરી લે, ચોરી લે અને પછી ફાઇટિંગ થાય. આગળ તમે જોયું પોયમમાં કે ફિશેસ કે જેમનું નોર્મલ કામ સ્વિમિંગ કરવાનું છે, પણ એ ત્યાં તમારા જેમ સ્કૂલ જઈ રહી છે. એમના સ્કૂલનો પ્રિન્સિપલ કોણ છે? નો સર ઓર મેડમ, ત્યાં એમના પ્રિન્સિપલ ફ્રોગ છે. તો આ હતી આપણી ફની ટાઉનની પોયમ. હવે તમને પોયમ આખી સરસ રીતે સમજ પડી ગઈ હશે. હવે એક્ટિવિટીના બીજા ભાગમાં આપણે રાઇમિંગ શબ્દો શોધીને એની યાદી બનાવવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એક ઉદાહરણ તમારા માટે આપેલું છે. કયો શબ્દ છે? ફ્લ્યુ. વેરી ગુડ. અને એના માટે રાઇમિંગ શબ્દ જે આપેલા છે એ છે ટ્રુ. તમે જોઈ શકો છો પોયમની દરેક પંક્તિ એટલે કે દરેક લાઇનના લાસ્ટ વર્ડ્સ મોસ્ટલી રાઇમ થતા હોય છે. તો તમે હવે બીજા એવા રાઇમિંગ શબ્દો શોધીને ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે. તો તમને કેટલા રાઇમિંગ શબ્દો મળ્યા? આવો જોઈએ. હું થોડા રાઇમિંગ શબ્દો જે પોયમમાંથી મને મળ્યા છે એ તમને બતાવું છું. ચાલો જોઈએ. પહેલો શબ્દ છે ટાઉન અને એની સાથે રાઇમ થતો એટલે કે સરખા ઉચ્ચારનો શબ્દ છે ડાઉન. આવી જ રીતે નેક્સ્ટ રાઇમિંગ શબ્દ છે ફ્લ્યુ, બ્લુ. તમે પણ શોધ્યા હશે. બીજા રાઇમિંગ શબ્દો હજી તમે કહી શકો છો. તમે લખ્યા હશે કાં તો પોયમમાં તમે શોધી શકો છો. બીજા રાઇમિંગ શબ્દની જોડી છે લોટ અને ફોટ. હજી કયા રાઇમિંગ શબ્દોની જોડી રહી જાય છે? યસ, છેલ્લા રાઇમિંગ શબ્દો છે સ્વીટ એન્ડ મીટ, પૂલ એન્ડ રૂલ. બાળમિત્રો, તમે સરસ મજાના રાઇમિંગ શબ્દોના જોડકા લખી કાઢ્યા છે. હવે તમને પોયમ ખબર પડી ગઈ હશે કે કેમ એનો ટાઇટલ ધી ફની ટાઉન છે. કારણ કે ત્યાં બધું સામાન્ય કરતાં કંઈક અલગ છે, કંઈક જુદું છે. તમે જોયું કે ત્યાં હ્યુમન્સ એટલે કે માણસો નહીં, ત્યાં વૃક્ષો ટ્રીઝ ટોકિંગ કરી રહ્યા છે. હવે આગળ એક્ટિવિટીમાં તમારે આ રાઇમમાં થતા એક્શન એટલે કે ક્રિયાઓ એની યાદી આપેલી છે અને એની સામે આ ક્રિયાઓ કોણ કરે છે એટલે કે ડુઅર કહીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે એક્શન અને ડુઅર, કર્તા અને ક્રિયાનો ટેબલ પૂરું કરવાનું છે. જેના માટે ક્રિયાઓની યાદી તો તમને આપેલી જ છે. પહેલી ક્રિયા છે ટોક્ડ, બીજી ક્રિયા છે સ્ટીલ, ચોરી કરવી. પોયમમાં કોણે ચોરી કરી હતી? યસ, બોલો બોલો. વેરી ગુડ. ટ્રીઝ. યસ, ટ્રીઝ સ્ટોલ ફ્રૂટ્સ ફ્રોમ ઈચ અધર. ચોરી પછી આપણી આગળની ક્રિયા થઈ એટલે કે ફાઇટિંગ. એન્ડ હુ ફોટ? પોયમમાં કોણ ફાઇટિંગ કરે છે? યસ, ટ્રીઝ ફોટ વિથ ઈચ અધર. નેક્સ્ટ ક્રિયા છે ગો ટુ સ્કૂલ. પણ આ તો આપણો ફની ટાઉન છે. અહીંયા સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ્સ નહીં જઈ રહ્યા કે ટીચર્સ, પ્રિન્સિપલ નહીં, પણ આ પોયમમાં કોણ સ્કૂલ જાય છે? યાદ કરો. ફિશેસ આર ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. બહુ સરસ. નેક્સ્ટ ક્રિયા છે ફ્લાય. બાળમિત્રો, સામાન્ય રીતે
આપણે બર્ડ્સને ફ્લાય કરતા જોતા હોઈએ છીએ, પણ આ પોયમ તો અલગ છે. એમાં કોણ ફ્લાય કરતા હતા? યસ, હ્યુમન્સ આર ફ્લાઇંગ. વી ઓલ, તમે, હું ને બધા જો ફ્લાય કરવા લાગીએ તો અહીંયા આપણી નેક્સ્ટ ક્રિયા છે વોક, વોકિંગ. નોર્મલી હ્યુમન્સ વોક, પણ આ પોયમમાં સામાન્ય તો કશું છે જ નહીં. અહીંયા શું અલગ થઈ રહ્યું છે? યસ, ધી બર્ડ્સ વોકડ. તો આ આપણું ટેબલ તૈયાર થયું છે. તમારે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં સારા અક્ષરે આ જવાબો લખવાના છે. બાળમિત્રો, તમે એક વાત ધ્યાનથી જોઈ હશે કે આ પોયમના કોઈ પોએટ નથી. ત્યાં એનો સોર્સ એટલે કે સ્ત્રોત કર્ટસી www.pitara.com લખેલું છે. એટલે કે ત્યાંથી તમને આવી બીજી સરસ મજાની રાઇમ્સ મળી શકે છે. તો તમે પણ ખાલી સમયમાં આ વેબસાઇટ જોઈને બીજી રાઇમની મજા માણી શકો છો. આ સાથે આજે આપણી એક્ટિવિટી 1 પૂરી થાય છે. થેન્ક યુ. नमस्ते बाल दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे और कक्षा 6 में हमने सारी इकाइयों की पढ़ाई भी पूर्ण की है. आज हम पुनरावर्तन के जरिए भाषा सज्जता से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी यहाँ पर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पर हम पाठ्यपुस्तक के ज़रिए भाषा ही सीख रहे हैं और हमारा मूल उद्देश्य तो यही है कि हम अच्छी तरह से हिंदी भाषा में प्रत्यायन करना सीख लें. तो आज हम ऐसी ही कुछ बातों के बारे में या ऐसी ही कुछ बातें यहाँ से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं इकाइयों पर एक बार फिर से नज़र डालने के साथ. तो देखिए ज़रा, इस चित्र को देखकर आपको पता चल गया कि ये पहली इकाई है दयालु शिकारी और ये चित्रपाठ प्रकार की इकाई थी जिसमें हमने चित्रों का अवलोकन करके एक कहानी की रचना की थी और चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए थे. दूसरी इकाई कौन सी थी जरा देख लेते हैं. एक जगत एक लोग, ये तो बहुत ही मज़ेदार कविता. और तो एक जगत एक लोग यानी कि सब एक है और हमें भी मिलजुल कर ही रहना चाहिए. और इसके साथ साथ भाषा सज्जता से जुड़ी हुई बातें भी हमने इस कविता में सीखी थी. तीसरी इकाई हमने कौन सी सीखी थी या पढ़ी थी ये भी देख लेते हैं. हाँ, समझदार नन्ही. और इसमें तो बिच्छू और नन्ही के बीच जो संवाद हुआ है और उसके जरिए कि भाई हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए. अगली जो इकाई है ये इकाई है गिनती और यहाँ पर हमने 51 से लेकर 100 तक की गिनती के बारे में जाना था. साथ ही साथ उनको पहचान कर शब्दों में और अंकों में उनका लेखन भी आप कर सकते हैं. आइए देखते हैं अगली इकाई हमने कौन सी पढ़ी थी. 5वीं इकाई हमने पढ़ी थी धरती को महकाए, है ना. तो ये भी बहुत ही मज़ेदार कविता है और उसके उदाहरण से हमें भी फूल, सूरज, दीपक, इन सारे तत्वों के उदाहरण से हमें भी ये सीख मिलती है कि भाई हमें भी क्या करना चाहिए. अगली जो इकाई हमने पढ़ी थी वह थी सुबह और इसमें तो एक दिव्यांग लड़की जिसका नाम है रेशमा, उसकी बात है और अपनी जिंदा दिली से रेशमा किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रही थी और वह अपने दिव्यांगता को किसी भी हाल में आड़े नहीं आने देना चाहती थी. और इसी इकाई में हमने अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में भी जाना है और दिव्यांगों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए ये भी हमने यहाँ पर सीखा है, समझा है. तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर इकाई 1 से लेकर 6 तक की बात आज की है और इन सारी इकाइयों के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. आज हम इन्हीं इकाइयों के माध्यम से हमने भाषा सज्जता की जो भी बातें सीखी है, समझी है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उसके कुछ और अभ्यास यहाँ पर करने वाले हैं. जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है,
लिंग है, वचन है, उनका परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है, समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, शब्दकोश का प्रयोग करना है। ऐसी कई सारी बातें जिसका अभ्यास बार बार करने से हम अच्छी तरह से हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। तो आइए एक ऐसा ही अभ्यास हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, तो देखते हैं। तो चलिए जरा, यहाँ पर आपके लिए सूचना है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर मैं कुछ वाक्य आपको दिखाने वाला हूँ। रमेश पढ़ रहा है ना। अब दूसरा वाक्य पढ़िए जरा। हाँ, परेश स्कूल जा रहा है। तीसरा, नीता और गीता खेल रही है। देखिए, पढ़ने में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि भाई कहाँ पर है बोलना है, कहाँ पर है बोलना है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे ही ज़रूर। चौथा वाक्य है, यह मीना की किताब है। अगला जो वाक्य है, राज को फोन किया था, है ना। तो आपने ये सारे वाक्य पढ़ लिए। आइए अब इन्हीं वाक्यों को मैं कुछ भिन्न तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ये दिखना भी है और समझना भी है। वह पढ़ रहा है। देखिए जरा, पहले हमने जो वाक्य लिखा था या पढ़ा था वह ऐसा था, रमेश पढ़ रहा है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं वह पढ़ रहा है। तो यहां पर रमेश की जगह पर मैंने कौन से शब्द का प्रयोग किया? हाँ, वह शब्द का प्रयोग किया। और ये जो वह शब्द है उसे हम सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि हमने सर्वनाम के बारे में जाना है कि भाई बार बार संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि मुझे एक बार रमेश कहना है तो मैं कह देता हूं कि भाई रमेश पढ़ रहा है, लेकिन बार बार रमेश खेल रहा है, रमेश खा रहा है, रमेश दौड़ रहा है, उसकी जगह पर रमेश पढ़ रहा है, वह कल स्कूल आया था, वह खेलने जाएगा। इस प्रकार से मैं बात तो किसकी कर रहा हूं? यहाँ पर रमेश की ही कर रहा हूं, लेकिन नाम की जगह पर मैं यहाँ पर वह का उपयोग कर रहा हूं। तो ये वह क्या है? सर्वनाम है। आइए दूसरा वाक्य भी इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए, परेश स्कूल जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूं वह स्कूल जा रहा है। यानी कि वह मतलब कौन? तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? परेश की बात कर रहा हूं। और परेश क्या है? संज्ञा है, नाम है, और उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर वह का प्रयोग किया है, तो वह अब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। नीता और गीता खेल रही है। इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर जो वाक्य लिखा है आपको वो पढ़ना है। वे खेल रहे हैं। समझिए, यहाँ पर मैंने वह का प्रयोग नहीं किया है। क्यों ऐसा किया होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो लड़कियों की बात है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में मुझे ये कहना होता तो मैं वह का उपयोग कर सकता था, लेकिन यहाँ दो लड़कियाँ यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन के लिए यहाँ पर वह की जगह पर वे का प्रयोग होता है। वे भी मूलतः तो सर्वनाम है, तो वे लड़कियाँ खेल रही है ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, वे खेल रहे हैं ऐसा भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ दोनों लड़कियों के नाम की जगह पर वे का प्रयोग किया गया है, तो वे क्या है? सर्वनाम है। अगला वाक्य देखते हैं। देखिए, यह मीना की किताब है। तो हमें पता है कि भाई ये किताब किसकी है? तो मीना की है। लेकिन अब अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई यह किसकी किताब है, तो मीना के नाम की जगह पर हमने यहाँ पर किसकी शब्द का प्रयोग किया, और ये किसकी जो शब्द है ये भी क्या है? सर्वनाम है। वैसे तो सर्वनाम के भी कई सारे प्रकार हैं जो आप अगली कक्षा में ज़रूर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम यही समझते हैं कि भाई नाम की जगह पर हमें किस प्रकार से और कौन से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर मीना की जगह पर हमने प्रश्न पूछने के लिए यानी कि किसकी किताब है जानने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। अगला जो विधान है, राज को फ़ोन किया था, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैंने उसे फ़ोन किया था। यानी कि मैं जब राज की बात कर रहा हूँ किसी के साथ, तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि मैंने उसे फ़ोन किया था। राज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन वह किसी अन्य जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके लिए उस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर रहा हूँ। तो राज की जगह पर उसे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ये भी क्या है? सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने ये देखा, तो नाम की जगह पर हमने भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया, और सर्वनाम के प्रयोग से हम बार बार की
संज्ञा की पुनरुक्ति को रोक सकते हैं और जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं उसके बारे में भी सरलता से कह भी सकते हैं। इसीलिए हमें संज्ञा के स्थान पर इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग भी करना चाहिए। आइए ऐसे ही कुछ और वाक्य मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, तो जरा देख लीजिए। अब देखते जाइए और मेरे साथ पढ़ते भी जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा शब्द सर्वनाम है, जरा बताइए मुझे। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यहाँ पर है आप। ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य पढ़िए। चलो हम स्कूल चलें, तो जरा बताइए और सोचिए कि यहाँ पर कौन सा शब्द सर्वनाम है। हाँ, यहाँ पर हम शब्द है वह सर्वनाम है ना। तीसरा वाक्य देखते हैं। चलो हम कबड्डी खेलते हैं। हाँ, यहाँ पर भी हम शब्द ही है जो सर्वनाम के रूप में यहाँ पर उपयोग में लिया गया है। चौथा वाक्य देखते हैं। यहाँ पर तो तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, ऐसा कोई पूछ रहा है कि भाई तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो यहाँ पर मेरी यानी कि खुद की जब बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से मैं, मेरा, मुझसे, मुझे, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। वह अपने आप खड़ा होने लगा है। देखिए यहाँ पर खुद के लिए ही जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो ये कौन से प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ पर तो वह का उपयोग किया गया है उसके लिए, है ना, लेकिन अपने आप भी हम प्रयोग कर सकते हैं स्वयं के लिए। अगला विधान देखते हैं। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो ये कुछ भी क्या है, सर्वनाम है। ये भी क्या है, अगर हमें पता होता तो हम उसका नाम बताते कि भाई दाल में नींबू पड़ा है, मिर्च पड़ी है, धनिया है, लेकिन पता नहीं है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि भाई दाल में कुछ पड़ा हुआ है। तो ये कुछ भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार से भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो यहाँ पर तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं, खुद की बात है कि भाई मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो मैं शब्द सर्वनाम है। उसे तो बस हंसना आता है, किसी और की बात जब कर रहे हैं तो उसके लिए अब कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। हाँ, उसे। आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि भाई उसे तो बस हंसना आता है। अगला वाक्य देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, जब हम किसी से पूछते हैं तो यहाँ पर नाम नहीं है, नाम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के लिए हम एक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। और ये सर्वनाम कौन सा है, हाँ, तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है। अगला वाक्य देखते हैं। मुझे पढ़ने बैठना है। किसको पढ़ने बैठना है, मुझे। तो ये मुझे क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों में भी आपने देखा कि खुद के लिए, किसी और के लिए किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। और आपको ये अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि आप भी अच्छी तरह से सही रूप में, यानी कि जब पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, जब एक वचन का प्रयोग होता है, जब बहुवचन का प्रयोग होता है, तब हमें किस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए ये भी समझ में रखना चाहिए। और पूरा वाक्य किस प्रकार से लिखा जाएगा ये भी हमें इसके साथ साथ समझने की आवश्यकता है। आइए इसी प्रकार से और कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं उसकी एक सूची भी देख लेते हैं। जरा देखिए, तो देखते जाइए और पढ़ते जाइए। मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। लेकिन मैं, हम यानी कि खुद की बात कर रहे हैं। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति है यानी कि हम 2-3 मित्र यहाँ पर बैठे हैं और हम, हमारा, हमारे लिए, ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अगले जो उदाहरण है सामने वाले के लिए, तो, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी। ये हमें पता है कि जब उम्र में हमसे कोई बड़ा है तो हमें उनको मान देना ही चाहिए, आप कहकर ही बोलना चाहिए। और हम उम्र है तो हम उसके लिए तू या तुम का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु या स्थान के लिए भी हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यह, वह, वे, उसे, उनका, उनसे, उन्हें, उनका, उनकी। यहाँ पर भी सामने वाले के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। जब प्रश्न पूछते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तब हम इसी प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन, किसे, किसने, कुछ, कोई, कब, किसे, किसको, क्या, है ना। आप जब भी प्रश्न देखते हैं तो इसी प्रकार के सर्वनाम शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा जब खुद के लिए बात करते हैं तो हम इसी प्रकार के सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, है ना।
तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर इकाइयों के बारे में तो कुछ मुख्य मुख्य बातें जानने का प्रयत्न किया, लेकिन साथ ही सर्वनाम का उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए और कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं, उनके बारे में जानने का और समझने का प्रयत्न किया। मैं आशा करता हूँ कि अब आप खुद भी ऐसे ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हर एक शब्द के बारे में एक एक वाक्य लिखेंगे और अपनी कॉपी में लिखकर अपने माता पिता को जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद।